Welcome back to my channel. Today we are going to start your topic based on differentiability. In the previous lecture we had completed your continuity and the MCQ based on that topic. So start with the topic differentiability. What is differentiability or derivability? So a function fx is differentiable at x equals to a, or we say a function is differentiable at x equals to a if right derivative with respect to a equals to left derivative with respect to a. Okay, and what is your right derivative? Limit s tending to 0 f of a plus h minus fa over h, and left derivative with respect to a is limit s tending to 0 f of a minus h minus fa over minus h. हम इसको डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे फंक्शन एफ एक्स को एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ देयर राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए. अदरवाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए. This is simple definition of differentiability or your derivability. Then come to next topic, derivatives of some standard functions that we can use in solving our problems. So derivative of a constant function is 0 with respect to x, and derivative of x की पावर n क्या होता है आपका? ये पावर आपकी आ जाती है बेस में nx और यहाँ पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं n minus 1. Then derivative of sin x is your cos x, and with respect to cos x derivative comes with negative sign minus sin x. The next derivative of tan x is your secant square x, and derivative of secant x is your secant x tan x. Next is your derivative of cot x is your minus sign with cosecant square x, and derivative of cosecant x is your minus of cosecant x into cot x. Then derivative of exponential function e की x is your e की x. Then derivative of a constant function raised to the power x means a की power x का derivative क्या होगा? a की x log of ea. And here a is greater than 0. The next d by dx log of x is your 1 by x. d by dx log of बेस में ये क्या होता है आपका? बेस में a है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 by x log base of e a, where a is greater than 0 and a is not equals to 1. Why? Because log of 1 is your 0 और डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लेंगे. So a not equals to 1 as log of 1 is 0. Then next ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज योर 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ योर कोस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओनली डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का डिफरेंस है यहाँ पर. कोस इनवर्स एक्स में बस नेगेटिव साइन लगा देना है इसी फॉर्मूले में. देन डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कोट इनवर्स एक्स में भी सेम ही है आपका विथ नेगेटिव साइन माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स में यही फॉर्मूला आपका नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो ये आपके इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा. देन हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू. Next come to what is algebra of derivatives, or how we use the derivatives in case of sum and difference in product and quotient. So first is your sum and difference rule, that is d by dx u plus minus v equals to, if sum is given then in between sum का sign आ जाएगा, and if difference is given then use difference sign in between, and du by dx plus dv by dx. Simple sum and difference rule. Then second is your product rule. How we can use product rule in case of differentiation? So dy dx of u v equals to, first we write down u, derivative of b means dv by dx plus v, then derivative of u du by dx. Okay. Then next is your quotient rule. d by dx u by v is your simply v square means denominator square, and then v derivative of u with respect to x minus sign u derivative of b. Okay. Then derivative of composite functions. Let y be a real valued function which is a composite of two functions, say y equals to fu and u equals to gx. Means y आपका composite functions है u and x का. Then derivative of y with respect to x is equals to dy by du dot du by dx. That is your f dash u and g dash x. Okay.
that is your f dash u dy by du, and g dash x is du by dx. Okay, or we can write at d by dx of f of gx equals to f dash. First we take derivative of f with respect to x, then again derivative of g. First we take derivative of f, then again derivative of this g with respect to x, that is f dash gx dot g dash x. And then derivative of your parametric functions, if x equals to phi t and y equals to j t. Okay, then dy by dx is your dy over dt divided by dx over dt. Okay, then next, what is your second order derivative? As we know, dy by dx, we write it as f dash x. It is your sign for your first derivative. So then again we take derivative of dy by dx with respect to x. We can write it as d2y over dx square equals to f double dash x is your second derivative. So this is the concept for differentiability. Now we can use this concept in solving our MCQs. So start your MCQ. MCQ number 1. Whenever we define derivative at a point x equals to c, then at that point limit s tending to 0, fc plus h minus fc over h. ये क्या है आपका? ये सिंपली डेफिनेशन है ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट. यहाँ c बोला है तो एट ए पॉइंट c. सो ये तो एग्जिस्ट करेगा. सो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट, रॉन्ग, एग्जिस्ट, यस. ठीक है, तो ये सिंपली क्या गिवन था आपको? डेफिनेशन ऑफ योर डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी. ओके, तो आपको डेफिनेशन इसलिए क्लियर होना जरूरी है. आपको फर्स्ट आपका कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी. उसी पर बेस्ड देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप सिंपली देखकर ही टिक कर देंगे एग्जिस्ट पे. देन नेक्स्ट एमसीक्यू, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज. अब इस पे पूछ रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. अब जहां आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा. तो यहां पर आप चेक कर सकते हो फॉर अगर मोड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए आपका एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर, ये मैंने एनी फंक्शन ले लिया, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल्स टू ए. तो उसी तरीके से यहाँ हम x की वैल्यू चेक करेंगे तो ये हाफ के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका. सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर x इक्वल्स टू हाफ. ओके, अदर देन हाफ इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज. मीन्स r माइनस हाफ के लिए ये क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अदर रियल वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होगा अदर देन हाफ, तो वी कैन राइट इट एज r माइनस हाफ. देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन को एक बार रीड करिए अच्छे से, देन सॉल्व करते हैं. एफ एक्स आपको गिवन है फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. हमें चेक करना है कि आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू है. और सबसे पहले एक बार अपने ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से, देन ही आपको सोल्व करना है अपना एमसीक्यू प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शंस में क्या गिवन है. हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हो, तो आपको सोल्व एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है. फर्स्ट चेक योर ऑप्शंस. तो क्या पूछ रहा है? एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल. तो हमें चेक करना पड़ेगा वेदर एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल और नॉट. देन नेक्स्ट, बी इज नाइदर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 नॉर एट एक्स इक्वल्स टू 1. अब 0 और एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए बोल रहा है कि आपका एफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एट एक्स इक्वल्स टू 1. मीन्स हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 1 पे. ऑप्शन से क्लियर है. डी में भी यही पूछा हुआ है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 बट नॉट एट एक्स इक्वल्स टू 1. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 1. तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, उसके बाद ही आप ऑप्शन टिक कर सकते हो. ओके, देन इसके फर्स्ट हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे. ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी. तो हम कैसे चेक करते थे? लिमिट ऑफ, हाँ ये सामने डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, h टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ क्या लगा देंगे हम? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका चेक करेंगे. ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे, देन इट इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट. सो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच. तो ये आपका आ जाएगा f1 प्लस एच. जब आप यहां पर लगाओगे तो ये आपका आएगा h साइन
हाँ यहाँ पे 1 प्लस एच लिखोगे आप एक्स के प्लेस पे, सो 1 ओवर साइन 1 ओवर एच, और ये अपॉन में आ जाएगा एच, और माइनस का F1। F1 मीन्स एक्स के प्लेस पे 1 रखने पर क्या हो रहा है, ये पूरी टर्म 0 हो रही है। क्लियर, यही आएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। सो यहां से आपका क्या आ रहा है, ये वैल्यू आई आपकी साइन 1 ओवर एच, और लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एंड दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर, एट एक्स इक्वल्स टू 1। सो ये वैल्यू क्या देगा आपका, ये ऑसिलेट करेगा आपका, ठीक है। वैल्यू जब यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी 1 एंड -1 के बीच में, ठीक है। सो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपकी लिमिट f इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब आपने x इक्वल्स टू 1 पर तो फाइंड आउट कर लिया है कि आपका फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब आप अपने ऑप्शंस चेक करिए एक बार। 0 पर चेक करने से पहले फर्स्ट चेक योर ऑप्शंस। f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, नो, यहीं से क्लियर हो गया क्योंकि आपका 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। देन सेकंड ऑप्शन, f इज नाइदर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 नोर एट x इक्वल्स टू 1। इसको अभी हम नहीं कर सकते इनकरेक्ट, क्योंकि अभी हमने 0 पे चेक नहीं किया है। f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 1। अब ये x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन डी, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 बट नॉट एट x इक्वल्स टू 1। अब हमें इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसके लिए 0 पर भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अगेन चेक करनी पड़ेगी। तो अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर चेक करते हैं हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। जब 0 पर लगाओगे तो ये आएगा आपका f0 प्लस एच माइनस f ऑफ 0 ओवर h, ऐसे लगाते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए x के प्लेस पे 0 प्लस h, तो ये आ जाएगा h माइनस 1 साइन 1 ओवर 0 प्लस h मीन्स h माइनस 1 ही आएगा, और माइनस f0। अब x के प्लेस पे क्या रखना है, 0, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव आपके फिर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, मीन्स साइन ओवर ये क्या आ जाएगा 1 ओवर -1 आ रहा है। तो साइन में जब भी नेगेटिव साइन होता है तो हम आउटसाइड में ले लेते हैं। इस तरीके से अगर आ जाए तो इसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ साइन 1, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका h, इस तरीके से, करेक्ट। देन सॉल्व करिए इसको फर्दर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे फर्दर, इस डेरिवेटिव को फर्दर सोल्व करते हैं इसको। तो ये आपका फर्स्ट मल्टीप्लाई करिए इसको h से, तो ये आ जाएगा h ऑफ साइन 1 ओवर h माइनस 1, क्लियर। एंड माइनस ये क्या है, -1 के साथ है, देन अगेन मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख सकते हैं h साइन 1 ओवर h माइनस साइन 1 ओवर h माइनस 1 and then minus of sin 1 over h। अब लिमिट थी साथ में, तो यहाँ पर लिमिट भी लगा दीजिए, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h साइन 1 ओवर h माइनस 1 ओवर h आ जाएगा, एंड माइनस ऑफ लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये आपका रिमेनिंग बचा साइन 1 ओवर h माइनस 1, और यहाँ पे आ गया साइन 1, क्योंकि मैंने आउटसाइड में कॉमन ले लिया आपका नेगेटिव साइन, इस तरीके से आएगा। देन फर्दर सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये मैंने आपका इन बिटवीन नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, तो ये आपकी टर्म ऐसे सोल्व हो जाएगी। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा h से h कैंसिल आउट, और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 अंदर लगाएंगे, तो रिमेनिंग बचेगा साइन ऑफ -1। देन ये आपका है इधर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ 1 ओवर h माइनस 1 प्लस साइन 1 ओवर h,
और ये आपको पता है, हम आउटसाइड में ले लेते हैं -1 और इसको अब फर्दर सोल्व करेंगे हम फॉर्मूला यूज करके साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मीन्स ये, एंड देन कोस ए माइनस बी ओवर 2 अपॉन में एच। ये हमने यूज किया आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी ओवर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। माइनस ऑफ साइन 1 माइनस लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा साइन ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1। ये एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो ये आ गया 2 ऑफ एच माइनस 1 और ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से 1 प्लस एच माइनस 1 मीन्स एच ही रिमेनिंग बचेगा एच। और यहाँ पर यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस एच प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2 माइनस एच ओवर 2 और होल के डिनोमिनेटर में क्या है? एच। अब हमें पता है एज साइन एच ओवर एच लिमिट लगाने पर एच टेंडिंग्स टू 0, ये लिमिट के कंसेप्ट में है आपका। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एंगल को नीचे सेम कर दूं तो ये आपका 1 हो जाएगा। इस टर्म को हमें 1 बनाना है, तो उसको 1 बनाने के लिए मैंने इसके अपोन में लिख दिया 2h माइनस 1 और मल्टीप्लाई में भी 2h माइनस 1। अब ये पूरी टर्म क्या देगी आपका? 1। ठीक है, तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी हो गया है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, पर आपको सोल्व करना आना चाहिए कि कैसे हमने सोल्व किया। देन लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये पूरा आपका क्या हो गया? कंप्लीट 1, तो 2 कोस ऑफ 2 माइनस एच ओवर 2 और अपॉन में ये आ गया 2h माइनस 1। अब इसमें लिमिट यूज करेंगे आप, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लिमिट लगाने पर ये फर्दर क्या देगा आपका? यहाँ पर h के प्लेस पे 0 रख देंगे हम, तो आपका ये निकल कर आएगा, यहाँ h 0 हो गया एंड ये आ जाएगा कोस ऑफ ये 0 कोस ऑफ 1। ठीक है, बिकॉज कोस क्या होता है आपका? इवन फंक्शन। कोस ऑफ -1 क्या देगा? कोस ऑफ 1। क्लियर? तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज, जब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल। सो इट इज डिफरेंशिएबल एट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर तो ये डिफरेंशिएबल है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। सो इसका ऑप्शन चेक करिए, इसमें बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 बट नॉट एट x इक्वल्स टू 1। जो हम ये डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन यूज करके आपका फंक्शन निकालते हैं। लास्ट में अगर आपका फंक्शन डिफाइंड आ रहा है इट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो आपने चेक किया, ये फंक्शन आपका fx नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा था एट x इक्वल्स टू 1 बट इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करिए, देन अगेन उसके ऑप्शंस चेक करिए, देन टिक योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एमसीक्यू पे। y आपको फंक्शन गिवन है y, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हमें चेक करना है इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये आपको y फंक्शन कैसे गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मींस यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका प्रोडक्ट रूल। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ आपको कंप्लीट सॉल्व करके देखना होगा, तभी आप टिक कर पाएंगे अपने करेक्ट ऑप्शन को, क्योंकि आपका सिंपली पूछ रहा है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो चेक करते हैं, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग योर प्रोडक्ट रूल। सो ये गिवन है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाएंगे हम अपना प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए, यहाँ पे यूज करेंगे dy बाई dx। ठीक है, फर्स्ट आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड आउटसाइड, ऐसे ही लगाते हैं हम अपना प्रोडक्ट रूल। सेकेंड आउटसाइड में लेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
अब चेक करिए इसका 2 + 3 sin x, हाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3। अब ये 3 का डेरिवेटिव मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, इट मीन्स इसका 3 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये आएगा 0 - 2। अब cos x का क्या होता है, cos x का हम लेते थे नेगेटिव ऑफ साइन x, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 sin x। इस तरीके से आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं, माइंड में रखने हैं और डिफरेंशिएशन करते जाइए फर्दर। देन 3 - 2 cos x, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इट बिकम 0 ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा 3 cos x। अब इसको पूरा सोल्व करिए और अपने ऑप्शन चेक करिए किससे सिमिलर हो रहा है आपका आंसर। सो 2, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2 sin x, तो ये आ जाएगा 4 sin x। ठीक है, और ये 3 × 2 = 6 एंड sin x इंटू sin x मीन sin² x। नेक्स्ट ये जाएंगे आगे, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट, देन -6 cos² x। ठीक है, तो अब फर्दर इसमें यूज करेंगे हम फॉर्मूला, देन अगेन 4 sin x + 9 cos x, और ये हम लेंगे आपका -6 कॉमन ले लिया, cos² x - sin² x। ये किसका फॉर्मूला होता था, आपको रिमाइंड होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आपने प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस फॉर्मूले को रीड किया है। ये होता है आपका cos 2x, इट इज नथिंग बट योर cos 2x। सो आपका आंसर आ जाएगा 4 sin x + 9 cos x -6 cos 2x। ये साइन का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पहले cos² x आएगा या sin² x लेंगे हम डिफरेंस में, तो इट इज योर cos² x - sin² x। तो अब ऑप्शन चेक करिए आपका आंसर किससे सिमिलर हो रहा है, 4 sin x + 9 cos x। नेगेटिव वाले को तो कट डाउन कर दीजिए। ठीक है, +9 cos x, माइनस में आ रहा है 6 cos x, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आपको यहाँ पूरा सोल्व करके देखना है यूजिंग योर फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो y आपको गिवन है √of sin x + y, इट मीन्स sin x + y की पावर हाफ। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, so dy/dx इक्वल्स टू sin x + y, और ये यहाँ क्या आएगा nx, मतलब हाफ ऑफ sin x + y, हाफ -1, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस sin x + y। ठीक है, ऐसे करेंगे। देन इसको सोल्व करते हैं, हाफ, और ये आ जाएगा 1/√, -हाफ आएगा ना, तो sin x + y, और ये इन ब्रैकेट में आ जाएगा d/dx ऑफ sin x इज योर cos x, और ये dy/dx, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या है आपका, इज योर cos x। अब कलेक्ट कर लीजिए dy/dx की टर्म्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, एंड देन सॉल्व इट फॉर dy/dx। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को, ½ sin x + y, ये आएगा cos x, प्लस ½ sin x + y dy/dx, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है आपका dy/dx। क्लियर। अब कलेक्ट करते हैं इन टर्म्स को, यहां करते हैं हम dy/dx की टर्म्स को लेफ्ट एंड राइट साइड से कलेक्ट करते हैं, देन सॉल्व इट फॉर dy/dx। तो ये आएगा आपका dy/dx कॉमन रखा हमने, 1 - ½ sin x + y। ठीक है, ये टर्म है आपकी दोनों तरफ से, यहां से 1 लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से -½ sin x + y, और ये बच गया आपका रिमेनिंग √ sin x + y, और ये cos x। अब आपका आंसर देखिए पहले ऑप्शंस में कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन में हमें ये y की टर्म्स में गिवन है, सो ये क्या है आपकी पूरी टर्म, नथिंग बट इज योर y। ये पूरी टर्म क्या है आपकी y, इसको y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा dy/dx 1 - 1 / 2y, और ये राइट हैंड साइड में ये cos x ऊपर मल्टीप्लाई थे इसके साथ ऐसे, तो 1/2y cos x।
अब dy बाई dx के लिए सोल्व कर दीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा cos x ओवर 2y और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y और नीचे आएगा एलसीएम में 2y माइनस 1, 2y से 2y कैंसिल, योर आंसर इज cos x ओवर 2y माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, पूरा आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा यूजिंग योर फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। तो ये सॉल्यूशन है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें dy बाई dx के लिए इसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं 6 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, y इक्वल्स टू, नोट डाउन कर लेते हैं, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। हमें फाइंड आउट वही करना है dy बाई dx। तो पूरा प्रॉपर मेथड से सोल्व करके देखना पड़ेगा, तभी हम टिक कर पाएंगे अपने ऑप्शन को। तो स्टार्ट करते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3x प्लस 2 और ये पावर में आ जाएगा हाफ माइनस 1। देन अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये आएगा आपका 3 और ये कांस्टेंट टर्म है 2, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी ये वाली टर्म बची और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ। इट मीन्स माइनस ऑफ हाफ और 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस हाफ माइनस 1 और फिर ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर प्लस 4 का, क्लियर। और ये क्या किया हमने, ये अपॉन में गिवन था आपका, तो इसको जब हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके गए तो ये होगी टर्म 2x प्लस 4 माइनस हाफ और इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया माइनस हाफ और पावर में माइनस हाफ माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट ये सोल्व करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ मीन्स माइनस हाफ, इट मीन्स 1 ओवर 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 और ऊपर मल्टीप्लाई क्या था 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया माइनस हाफ 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस हाफ माइनस 1 मीन्स माइनस 3/2। अब ये डिफरेंशिएशन करेंगे 2x स्क्वायर का, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका, ये पावर यहाँ आएगी 4x और पावर में 2 माइनस 1 मीन्स 1, ये 4x ही आएगा रिमेनिंग और 4 का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट टर्म है तो 0। ये इस तरीके से आएगा आपका। नेक्स्ट करते हैं फाइनल इसको सॉल्व फॉर dy बाई dx। तो ये आएगा 3 ओवर 2 3x प्लस 2 और ये आपका आया 2 से 2 कैंसिल माइनस 2x, हाँ x आ रहा है ना आपका रिमेनिंग, और ये पावर में नेगेटिव है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे इस टर्म को। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2। अब ऑप्शन चेक करिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से आपको कंप्लीट सोल्व करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। देन टिक योर करेक्ट ऑप्शन। सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा और आगे फर्दर आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे कौन से टॉपिक से मोर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये काफी लेंथी टॉपिक है, इस पर वीडियोस बहुत सारे बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कि फर्दर मैं कौन से टॉपिक पर आपकी वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच।